हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड कराइए, तो आज से फाइनली मैंने डिसाइड करा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी के या फिर जो अदर्स सोशल साइंस के या साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको इंग्लिश में ही कवर करवाऊंगा। मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़ने के लिए वो सारी मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा थ्रू द पीडीएफ ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल ऑफ एनसीईआरटी's books. So in today's video we are going to discuss all about our India's geographical view, which is really very important topic to cover, and there are multiple questions which come from this topic. So this is really very important to cover and it plays a vital role in our preparation and in questions which comes from this chapter. So it is really very important to cover up. Okay, so let's get start this video. And before starting this video, if you are new on this channel, so please must subscribe this channel for getting more videos regarding the preparation and getting more updates regarding DU B.Ed and its information which comes from Delhi University. So लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो फाइनली। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है और जितने भी जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं अबाउट इंडिया वी विल डिस्कस ऑल दैट। एंड later on we will discuss more about longitude and latitude, and also there are many multiple things which are important to discuss. So in this video you will get everything about India, and there are questions also which we will discuss at the end of the video. Okay, so let's watch this video till the end, because in the ending you are going to see some questions regarding this chapter only. And once you will get understand this video, then only you can cross check your knowledge whether you understood the topic or not, whether you understood the concept or not. So let's get to start this video. Finally, I have told many times that let's get to start this video, but finally we are going to start it. So the first and very first fact about our India is located in the northern hemisphere. So as you can see our world, so if we divide this world into two parts by the equator, so our India, you will see our India is situated in northern part of it. So it is the first fact which is about our India. The second fact is about latitude and longitude. So the latitudinal extent is from 8 degree 4 northern to 37 degree 6 north. So this is the latitude of our India. And if we talk about longitudinal extent, so longitudinal extent of the country is from 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. So this is our latitude and longitude of our India. और यदि इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी इंग्लिश के साथ साथ मैं उन्हें हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँगा। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो जो लैटिट्यूड होता है वो आपका देशांतर रेखाएं होती हैं, लाइक जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तो ये देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है कि भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं उनका मान कितना है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक नॉर्थ में, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और वहीं पे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड आपका होता है अक्षांश रेखाएं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात में 68 डिग्री 7 से लेकर ईस्ट अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 तक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारी कर्क रेखा है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं हम कर्क रेखा, जो इसका मान है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। तो ये जो कर्क रेखा होती है वो हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड जिसमें हमें ये याद रखना है कि जो ये कर्क रेखा होती है वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया
82 degree 30 east, which passes through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country। और जो हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया है, जिसे हम याम्योत्तर देशांतर भी कहते हैं, उसका मान है 82:30 ईस्ट, और ये मिर्ज़ापुर से होती हुई निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इसी से हम अपने इंडिया का जो मानक समय है उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। जो हमारे भारत का मान्योत्तर टाइम है, ठीक है, उसे याद रखना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं याम्योत्तर देशांतर रेखा। इसका मान याद रखना है 82 डिग्री 30 ईस्ट, और कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी, वो किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं टोटल, जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है अबाउट इंडिया, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, विच यू ऑल नो। एंड नेक्स्ट है in terms of area, Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in India. It is also a very common fact which you all know. Next है हमारा total distance of the country from North Kashmir to South Kanyakumari is 3214 kilometer, and from West Gujarat to East Arunachal Pradesh is 2933 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कितना डिस्टेंस है हमारे भारत का, तो वो है 3214 किलोमीटर। और जब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का डिस्टेंस नापते हैं तो वो निकलता है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये है। अगला है जो हमारा, वो है इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। और फिर ये पड़ोसी देश है जिनके साथ हमारा इंडिया अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। तो वो बता रखा है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो है वो आपके नॉर्थ वेस्ट साइड में है। इसके अलावा चाइना, नेपाल, भूटान हो गया, ये आपके नॉर्थ साइड में है, जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। इसी तरह फिर आपका म्यांमार एंड बांग्लादेश हो गया, जो कि ईस्ट में है। फिर आपका श्रीलंका एंड मालदीव्स आर 2 आइलैंड नेबर्स, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ होते हैं। नेक्स्ट आपका श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives Island are situated to the south of the land Lakshadweep Island. So it is just saying that जो यह श्रीलंका और भारत के बीच में थोड़ी सी एक लाइन सेतु सा जा रहा है, उस सेतु से श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है। उस सेतु को हम कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर से आपसे पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली संधि का क्या नाम है, तो उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, जिसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ट्रेड रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। एज यू ऑल नो कि हमारे इंडिया की पोजीशन 7th रैंक पे है अगर एरिया वाइज हम बात करें बड़ी कंट्रियों में। देन द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे इंडिया का हमारा एरिया है। ठीक है, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम विश्व में देखें तो पूरे विश्व का हमारा जो भारत है 2.4% एरिया में आता है। ठीक है, इतना एरिया हमारा भारत कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है इस बार के जामिया बीएड में या फिर डीयू बीएड में, किसी में भी। फिर है इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,616.6 किलोमीटर। तो ये पूरा जो हमारा लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन एरिया है उसका हमें एरिया का मान बता रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा फिर इंडिया सेंट्रल लोकेशन बेनिफिट्स. सो दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट and let's move on from here. So now we have questions regarding whatever we have discussed. Now let's check your knowledge whether you understood anything or not. So the first question: which latitudinal line divides our country into two equal parts? So now let's try to give answer in the comment section, but still I will be giving your answer. So the answer of this first question is Tropic of Cancer divides our country into two parts. ठीक है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ इंडिया. ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट है इफ यू वांट टू गो टू कवरत्ती विच यूनियन टेरिटरी विल यू गो. सो डेफिनेटली इट इज वेरी easy. If you know the capital of Lakshadweep, so you can definitely answer this question. So yes, answer is also Lakshadweep because its capital name is Kavaratti. So if you want to go in Kavaratti, you need to go in Lakshadweep. Fourth question: which union territory of India is located in Arabian Sea? So it is Maldives. We have, I think. Fifth question we have which union territory of India is located in Bay of Bengal. So इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. नेक्स्ट हम चलते हैं द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज. सो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ. सो इसका सी जो आंसर है वो सही हो जाएगा. जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा. द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू गेस. द फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट is the right answer of this question. नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू. कहाँ से होकर नहीं जाती है. सो यस, इट इज़ वेरी इजी टू गेस. सी अगेन गोवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया. अब लैंड का जो कितना एरिया है हमारे इंडिया का, तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन इंडिया. सो इट इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन इंडिया. नेक्स्ट आपका 11th what is the position of India in the world in terms of area. So it is 7th rank on we have. 12th question we have India's land boundary is about. So it is about 15,200 kilometer. Next आपका what is the standard meridian of India. So again the very easy answer we have. So it's a 82 degree 30 east. Okay, next 14 question the standard meridian of India passes through. कहाँ से standard meridian of India passes होती है, तो वो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश. Next question we have the Pak state is located between India and Sri Lanka. The first question the first option is right. So these are the questions which are important to discuss, and definitely one question will come in Jamia this year also, because last year also one question 2 or 3 question came from this chapter only. So this chapter is very important and plays a very important role in Jamia B.Ed. Okay, if you're preparing for Jamia, so this is really very important, but it is as equally important for DU B.Ed also. Okay, so do not take this chapter in a light way, but yes, also please take care of all the information which are shared with you all, and try to write it down some notes if you are going through all these video, because you are not reading, if you are listening to me, so please write it down something, because at the time of revision you will get everything whatever you have written, and that would help you to create your understanding better, and it will also reduce your stress that I have not learned anything. So after seeing your all notes you will think that yes, I have done something better in my past, and I have written down some notes, so those notes will help you a lot in your revision time. So यही थी आज की वीडियो. I hope you would have enjoyed this video. So let's meet in another video. I will see you in another video and give you some another topics and some other
question, some other important question. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में. Till the time, you can subscribe this channel for getting more videos like this only, and for getting more updates like this only. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.